Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Shabana Parveen Malik. Welcome to my channel Watch to Lead. This is your new course book for first year. I've gone through the whole book and I found it very interesting and substantial because it is an activity based book. The participation of the student has been made mandatory and I hope जब आप इसको पढ़ेंगे आप भी इसको enjoy करेंगे. Even if you find any difficulty, I'm here to make it easy for you. Okay, let's have a look on content page now. पहले क्या है prose section, section A. आपको पता है ना prose क्या होती है बच्चे? Whatever is not poetry is prose. Which things are included in it? Essay writing, fiction, novel, play, comprehension passages, article, summary, letter and dialogue writing. ये सब किस में आता है? Prose में. So 10 lessons included in this section. फिर आता है आपका section B, poetry section है इसमें. आप देख रहे हैं 10 poems हैं इसके अंदर. No, I'm sorry, 7 poems हैं. And among these 7, the first one, The Character of Happy Life. Fifth one, Lucy Gray. एंड द सिक्स्थ वन एबट ऑफ कैंटरबरी. ये आपकी पुरानी बुक में से है, ठीक है. और उसके बाद आपके पास प्ले है सेक्शन सी में, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट. इट्स अ काइंड ऑफ साइंटिफिक फिक्शन, ठीक है. 3 सीन है, पूरा कंप्लीट प्ले नहीं दिया हुआ, उसके 3 सीन दिए हुए हैं, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोर्स कंटेंट. Okay, let's get started with today's lesson. It's unit 1.1 reading comprehension. आप देख रहे हैं pre-reading exercise के कुछ questions हैं. I'm not gonna deal right now with these questions. Later on inshallah we'll see them. Okay, reading text से शुरू करते हैं. Qaid on 11th August 1947. The Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah made presidential address on 11th August 1947 to the inaugural session of Pakistan's first Constituent Assembly. That was one of the most consequential assertions in the history of South Asia. आपको पता है पाकिस्तान साउथ एशिया में आता है, इसलिए हमें बताया गया इस लेसन में कि कायद-ए-आज़म ने अपनी जो कानून साज असम्बली पाकिस्तान की फ़र्स्ट लॉ मेकिंग असम्बली थी, उसका इनाग्रल सेशन जो इफ्तिताही तकरीब होती है उससे उन्होंने खिताब किया है एज अ हेड ऑफ स्टेट एंड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द स्टेट. फिर और ये जो मौका था पाकिस्तान का बनाया जाना और उसकी कानून साज असम्बली का बनना और उसे एड्रेस करना, इट वाज नॉट अ कॉमन, नॉट अ ट्रिवियल थिंग एट ऑल. रादर इट वाज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया. बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो कायद-ए-आज़म ने और एशिया के मुसलमानों ने, इस कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने अपने लिए हासिल की. दिस हिस्टोरिक स्पीच टेस्टिफाइज द कायद्स विजन ऑफ पाकिस्तान. ये उनकी तारीखी तकरीर जो है ये कायद-ए-आज़म के विजन का सबूत देती है आपको कि he was such a visionary and foresighted man that he not only confronted with their colonial masters जो अंग्रेज थे और with the Hindus as well. दोनों के साथ उन्होंने कितनी अच्छी तरह डील किया. It reminds about the teachings of Holy Prophet Hazrat Muhammad, the messenger of Allah, the last of the prophets, peace be upon him and upon his family and companions, that all men are equal in the eyes of God. ये सेंटेंस हमें याद दिलाता है अल्लाह's अपोस्टल हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लास्ट सरमन थी उसके जो अल्फाज हैं कि अल्लाह की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं. आप देखेंगे बेटे तो इस सारे लेसन के अंदर उनकी इस तकरीर का इस एक जुमले का जो एसेंस है, वो जो रूह रवा है, वो सारी आपको इस तकरीर में नज़र आएगी कि ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ गॉड. अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं. ये सेंट्रल पॉइंट था कायद-ए-आज़म की इस तकरीर का. Here is an excerpt of his memorable speech. उनकी तकरीर में से एक एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है. He says, Mr. President, ladies and gentlemen, I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me. मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ इस इज़्ज़त अफजाई के लिए जो आपने मुझे अता की है और अपने आपके खुलूस का.
I sincerely hope that with your support and your cooperation, we shall make this Constituent Assembly as an example to the world. मुझे यकीन है इस बात का कि आपके ताउन के साथ और आपकी सपोर्ट के साथ हम अपनी इस कानून साज असम्बली को दुनिया के लिए एक मिसाल बनाकर पेश करेंगे. Further, he says the Constituent Assembly has got two main functions to perform. इस assembly के दो main functions हैं. The first one कौन सा है? The first is the very onerous and responsible. ये जो पहला काम है ये बहुत मुश्किल, बहुत हरकलीन टास्क है और बहुत जिम्मेदारी का काम है. वो क्या है? फ्रेमिंग आवर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुस्तकबिल का कानून बनाना. एंड द सेकंड फंक्शन क्या है? और फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कंप्लीट सॉवरन बॉडी, कि आप एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा हैं एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की कानून साज असम्बली जो है ये एक आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार इदारा है. वी हैव टू डू द बेस्ट वी कैन इन अडॉप्टिंग आ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन. हमें सूबाई जो कानून साजी है, सूबों का एक ख़ुद मुख्तार कानून होता है, उसको अपनाने के लिए हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए फॉर द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान. और ये पाकिस्तान की फेडरल लेजिस्लेचर का काम है. You know really that not only we ourselves are wondering. आपको पता है कि ना सिर्फ इस वक्त दुनिया में हम एक परेशान कुन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हालात से गुजर रहे हैं. I think the whole world is wondering. Important words, and we need to understand the spirit behind these words. Okay, he says the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution, very important word, which has brought about the plan of creating two independent sovereign states, two independent sovereign dominions in this subcontinent. Okay, वो ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ इस वक्त हम मुश्किल हालात से दो चार हैं, बल्कि सारी दुनिया के अंदर एक डिप्रेशन आया हुआ है. अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रेवोल्यूशन का मतलब है सारी दुनिया ही इस वक्त एक कियोटिक सिचुएशन से गुजर रही है. और इसी वजह से हम दो आज़ाद रियासतों का वजूद अमल में लाया जा सका इस कॉन्टिनेंट के अंदर. दिस माइटी सब कॉन्टिनेंट विद ऑल काइंड्स ऑफ इनहेबिटेंट्स. ये आपको पता है ना, एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट और इसमें बहुत हर तरह का, हर मज़हब का, हर नस्ल का, हर रंग का बंदा आबाद है. हैज़ बीन ब्रॉट अंडर अ प्लान विच इज़ टाइटैनिक, अननोन, अनपैरेलल्ड. तो इसके लिए इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों को दो हिस्सों में जो प्लान बना था, दो स्टेट्स बनाने का अलहदा, इसको डील करने के लिए एक जो प्लान बनाया गया वो टाइटैनिक था और अनपैरेलल्ड था. मतलब ऐसा मंसूबा, ऐसी प्लानिंग पहले कभी नहीं की गई. बेटे इसको हम अच्छी तरह समझ नहीं सकते जब तक कि हम अपने हिस्ट्री के रिकॉल को, नॉलेज को थोड़ा सा रिकॉल ना करें. वो किस तरह, आपको पता है ना, इन द 16th century द यूरोपियंस केम टू दिस आइलैंड विच दे कॉल स्पाइस आइलैंड. बड़े सगीर के अंदर वो दाखिल हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू फॉर द सेक ऑफ ट्रेड. फिर उन्होंने यहाँ पर अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए. इसी तरह उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई अफ्रीका में भी और एशिया में भी. फिर बाय द एंड ऑफ 19th century almost all the Asia was seized by these colonial powers. लेकिन उसके बाद 20th century में क्या होता है कि there was a wave of nationalism and there was a wave of resentment against these white man's imperialism roused in the world. दुनिया इनके वो जो साम्राज्य निज़ाम था इनका, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने आके जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ थे जैसे एशिया के और अफ्रीका के, इनके ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया था. तो दुनिया के अंदर बेदारी पैदा हुई और उन्होंने आज़ादी के लिए जद्दोजहद करना शुरू कर दी. और इसी तरह नेशनलिज्म का जज्बा बेदार हुआ तो लोगों ने आज़ादी की डिमांड करना शुरू कर दी. फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो होता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी. दैट वाज स्टार्टेड इन 1939 एंड एंडेड इन 1935 45 सॉरी 39 के अंदर शुरू हुई, 45 के अंदर ख़त्म हो गई. तो उसकी वजह से जब ये ख़त्म हुई ना, वॉर ऑलवेज ब्रिंग्स डिज़ास्टर, नो मैटर यू विन और लूज़. पता है ना, जीतें या हारें, जंग तो तबाही लाती है. उस तबाही की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक डिप्रेशन पैदा हुआ. इसको ग्रेट डिप्रेशन इट इज़ कॉल्ड.
तो उस डिप्रेशन की वजह से इनको बड़े सगीर को छोड़ना पड़ा, ये इनकी मजबूरी थी कि इनको वापस जाके अपने मामलात को सेटल करना पड़ा। तो ये वो हालात थे जब सारी दुनिया एक अजीबो गरीब क्योटिक सिचुएशन के अंदर थी, कशमकश के अंदर थी। आई थिंक यू गॉट इट नाउ। Even if you have any difficulty, you can ask me in the comment box, ठीक है? I'll reply you inshallah. Okay, in the next paragraph, we are told, dealing with our first function, the first and the foremost thing that I would like to emphasize is the remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. अब कायद आज़म अपनी लॉ मेकिंग असम्बली को बता रहे हैं, उनके अरकान को, मेम्बरान को, कि अब आप एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार इदारा हैं, तो ऐसी लॉ मेकिंग कीजिए जो पाकिस्तान के लिए, एक आज़ाद स्टेट के लिए ज़रूरी है। इट देयरफॉर प्लेसेस ऑन यू द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज टू हाउ यू शुड टेक योर डिसीजंस। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने फैसले किस तरह लेते हैं। The first duty of the government is to maintain law and order so that the people, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. अब आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप इस खुद मुख्तार और आज़ाद रियासत के अंदर लॉ मेकिंग करके अमन और सुकून की ऐसी कैफियत पैदा करें जिसमें यहाँ लोगों को मुकम्मल तौर पे आज़ादी हो कि वो आसानी से मूव कर सकें। सब्जेक्ट्स मीन्स पीपल ऑफ दिस कंट्री, दे कैन फील फ्री एंड दे कैन मूव wherever they want to go. Okay, in the next paragraph, the second thing that occurs to me is this: one of the biggest curses from which India is suffering is bribery and corruption. यहाँ पे पीछे एक क्वेश्चन भी है कि वो बिगेस्ट प्रॉब्लम कौन सा था जिसका कायदे आज़म ने जिक्र किया। ही मेंशन्ड ब्राइबरी एंड करप्शन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वी हैव टू डील विद दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? इससे सबसे पहले हमें निपटना है। ये ब्राइबरी जो रिश्वतखोरी है और करप्शन जो है, ये बहुत किस्म की करप्शन है, दैट रियली इज़ अ पॉइजन, और ये माशरे के लिए नासूर है, जहर है। वी मस्ट पुट दैट डाउन विद एन आयरन हैंड एंड आई होप दैट यू विल टेक एडिक्वेट मेजर्स एज सून एज इट इज़ possible for this assembly to do so। और मेरा ख्याल है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप ऐसे कवानीन बनाएंगे जिनसे इन समाजी बुराइयों का सद्देबाब हो सके हमारे माशरे से। Further he says black marketing is another curse। ब्लैक मार्केटिंग जो है ये एक और बीमारी है हमारे माशरे के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो पाई जाती है। ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है? इन विच इलीगल मनी इज़ इन्वॉल्व्ड, जैसे स्मगलिंग के ज़रिए, ड्रग्स के ज़रिए पैसा बनाते हैं लोग, वो ब्लैक मनी है। और भी बहुत सारे लोगों से ज़राए से नाजायज़ पैसा कमाना ब्लैक मनी इट इज़ कॉल्ड। वेल आई नो दैट ब्लैक मार्केटर्स आर फ्रिक्वेंटली कॉट एंड पनिश्ड। इनको सख्ती से इनको पकड़ना चाहिए और इनको सज़ाएँ देनी चाहिए, इनको कोई किसी किस्म की कोई छूट इनके साथ नहीं बरतनी चाहिए। नाउ यू हैव टू टेक दिस मॉन्स्टर विच टुडे इज़ अ कोलोसल crime against a society in our distressed conditions। Look, Qaid-e-Azam has used the word distressed conditions। उन्होंने कहा कि ये जो ब्लैक मार्केटिंग है ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। आपको पता है ना, मॉन्स्टर इज़ अ सिंबल ऑफ सिंबल ऑफ समथिंग नॉट प्लेजेंट, एक अनप्लेजेंट चीज़ का एक सिंबल है ना, जो बहुत ख़राब कोई चीज़ आपको नज़र आती है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा मुश्किल वक्त है, ये डिस्ट्रेस कंडीशंस हैं हमारी। एज अ न्यू बॉर्न स्टेट पाकिस्तान हैड टू फेस सेवरल प्रॉब्लम्स, जिसमें इनहेबिटेंट्स को आबाद करना था, डिजीज़ भी फैल गई थी, फिर आपको वाटर डिस्प्यूट का जो इश्यूज़ थे इंडिया के साथ, फिर आपके एसेट्स जो आपको प्रॉमिस किए गए थे कि वो मिलेंगे पाकिस्तान को, बट नॉट गिवन टू द पाकिस्तान टिल टुडे, इवन आज तक भी पाकिस्तान को नहीं दिए गए। तो बहुत सारे किस्म के प्रिंसली स्टेट्स का इशू था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उस वक्त जो पाकिस्तान को डील करना थे एज अ न्यू बॉर्न स्टेट। तो कायदे आज़म ने कहा उन्हीं हालात को मद्देनज़र रख के बेटे इसको समझने की कोशिश करो कि उस वक्त बहुत मुश्किल हालात है, तो बहुत मुश्किल हमारी कंडीशन थी। तो उन्होंने कहा अगर ब्लैक मार्केटर्स ने पैसा बनाना शुरू कर दिया तो लोग और ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। आई थिंक
दे ought to be very severely punished. वो कहते हैं मेरा ख्याल है कि इनको सख्ती से सजाएं दी जानी चाहिए because they undermine the entire system of control and regulation of food stuff and essential commodities. वो कहते हैं कि इन लोगों को इसलिए भी सज़ा दी जानी ज़रूरी है कि ये लोग पूरी गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको ये अंडरमाइन करते हैं, उसको समझते हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं है और हमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है करने वाला, तो इनको इसलिए भी सख्ती से डील करना चाहिए. द कॉज एंड कॉज होल सेल स्टार्वेशन. और जब ये ब्लैक मार्केटिंग होती है तो चीज़ों की ये आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ फूड पैदा करते हैं. ये इस तरह शो करते हैं कि जैसे खुराक की कमी हो गई है और लोगों के खाने पीने का सामान मैसर नहीं है, तो फिर उससे क्या होता है, रिजल्ट होता है फेमाइन आता है, डिज़ास्टर है जो कि डेडली थिंग है बहुत ज़्यादा, जब कहत की सूरत हाल पैदा हो जाती है. तो इनको रोकना चाहिए कि ये इस तरह की सिचुएशन कंट्री के अंदर ना पैदा कर सकें. द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी इज़ अ legacy which has been passed on to us along with many other things. अगली चीज़ कहते हैं जो मुझे क्लिक करती है वो एक लेगेसी है. लेगेसी क्या होती है, इनहेरिटेंस विच यू इनहेरिट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स. ठीक है, तो उन्होंने कहा हमने कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें हमने इनहेरिट की हैं, जिसमें एक चीज़ नेपोटिज्म एंड जॉबरी है. नेपोटिज्म क्या होता है, अकरबा परवरी इसको उर्दू में कहते हैं, और जॉबरी क्या होती है, व्हेन यू टेक एडवांटेज ऑफ योर हाई पोजीशन. आपके पास कोई सोसाइटी के अंदर कोई मकाम है, कोई गवर्नमेंट की कोई जॉब के अंदर आप हैं, किसी अच्छे इदारे में हैं, तो आप अपने सब रिश्तेदारों को, अपनी बेटी को, बेटे को, अपने नीसिस को, नेफ्यूज़ को लाके अपने उस जॉब पे बैठा देते हैं, अपने अजीज़ो अकरबा को नवाजते हैं. दैट इज़ कॉल्ड जॉबरी. नेपोटिज्म भी इसी की एक किस्म है. ठीक है, जॉबरी में स्टेटस से फ़ायदा उठाते हैं, नेपोटिज्म में अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुँचाते हैं. दिस ईवल मस्ट बी क्रश्ड रिलेंटलेसली. ये बुराई जो है इसको सख्ती से डील किया जाना चाहिए, किसी किस्म का रहम नहीं बरतना चाहिए. आई वॉन्ट टू मेक इट क्वाइट क्लियर दैट आई शैल नेवर टॉलरेट एनी काइंड ऑफ जॉबरी, नेपोटिज्म और एनी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रॉट टू बेयर अपॉन मी. मैं एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी किस्म की जॉबरी, नेपोटिज्म और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो मेरे ऊपर कोई लाने की कोशिश करेगा, मैं उसको हरगिज़ टॉलरेट नहीं करूँगा. We want to make this great state of Pakistan happy and prosperous. अगर आप अपनी इस अजीम पाकिस्तान को एक खुशहाल और खुश रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं, we should wholly and solely concentrate on the well-being of people. अब बेटे ये well-being of people का मतलब क्या है, we should raise the living standards of the common people. आम लोगों की तरफ तवज्जो देनी है, एंड स्पेशली फॉर द मासेस एंड द पुअर. ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं ना, दे शुड बी द फोकस ऑफ आवर गवर्नमेंट. इफ़ यू विल वर्क इन कॉपरेशन, अगर आप तावन करें एक दूसरे के साथ, फॉरगेटिंग द पास्ट, अपना माजी भुला कर, बर्निंग द हैचे इज़ व्हाट, इसको उन्होंने इट इज़ अ काइंड ऑफ सिमिली, उन्होंने कहा है कि जो पुराने इख्तलाफात थे, जो माजी की तलखियाँ थी, जो एक दूसरे की जड़ें काटने वाली जो तल्ख बातें थी, उनको आप दफन कर दें, उनको आप अपने माजी को भूल जाएं और एक नए बिगिनिंग के साथ, एक नए स्टार्ट के साथ अपनी लाइफ, अपनी कौमी ज़िंदगी शुरू करें. यू आर बाउंड टू सक्सीड. तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से, तरक्की करने से नहीं रोक सकती. इफ़ यू चेंज योर पास्ट एंड वर्क टुगेदर इन अ स्पिरिट दैट एवरी वन ऑफ यू, नो मैटर टू व्हाट कम्युनिटी, कलर, कास्ट और क्रीड ही शी बिलोंग्स टू इज फर्स्ट. अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, इसको मद्देनज़र रखेंगे कि आप किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हैं, किसी भी कास्ट से, ज़ात पात से, आपका रंग गोरा है, काला है, आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप ये सब चीज़ों से ऊपर होके, अबव ऑल दीज थिंग्स, इफ़ यू थिंक एज अ पाकिस्तानी, ठीक है, तो फिर हम कामयाब होंगे इन सारी चीज़ों को भुलाकर. Second and the last, a citizen of this state with equal rights, privileges and obligations. जब आप अपने सारे तासुबात को और अपने माजी की तलखियों को भुलाकर एक होकर काम करेंगे, तो फिर आप you would take all the privileges and rights, ठीक है, which is given by the state to every citizen. जो एक आज़ाद रियासत अपने शहरियों को हुकूक देती है, वो सब आपको मिलेंगे, वो सब इम्तियाजी हुकूक आपको मिलेंगे. We should begin to work in that spirit, and in course of time all these angularities of the majority and minority communities.
तो फिर बेटे आपको पता है ना एंगल किस तरह बनता है, तो जो उसका जब हम दो लाइंस को आपस में मिलाते हैं तो उनका जो होता है आई मीन कि जहाँ दोनों मिलते हैं आपस में उस एंगल पे उन्होंने इसको एक किस्म की एक सिमिलैरिटी उन्होंने ड्रॉ की है कि जो जिस तरह आप इन सब चीज़ों के ऊपर आप उन्होंने बताया है आपको अपने नस्ली तस्सुबात को और अपने जो सोशल कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको भुला देंगे तो फिर मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दे विल गो हैंड इन हैंड एंड विल वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, साथ साथ मिल के चलेंगे। नो पावर ओके, नो पावर कैन होल्ड अनदर नेशन इन सब्जेक्शन। फिर वो कहते हैं कि आज वो वक्त है जब कोई भी एक कौम किसी भी दूसरी कौम को अपना ग़ुलाम नहीं बना सकती, तसल्लुत में नहीं रख सकती। जैसे इम्पीरियलिज़म था, जैसे मैंने आपको बताया एक साम्राज्य निज़ाम था, एक मूवमेंट बाकायदा शुरू हुई थी जब इंग्लैंड के अंदर यूरोप के अंदर इन जनरल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो उन्होंने तरक्की कर ली। फिर उन्होंने जो बाकी दुनिया थी जो लेस डेवलप थी, जैसे एशिया था, जैसे हमारा कॉन्टिनेंट अफ्रीका एशिया था और अफ्रीका था, ये लेस डेवलप कंट्रीज़ थे, तो वो यहाँ आए और उन्होंने इन पे आके अपना तसल्लुत कायम कर लिया कि आप लोग, उन्होंने कहा कि बर्बेरियंस हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, तो वी आर हियर टू एनलाइटन यू। तो उन्होंने कहा वो वक्त गुजर चुका जब इन्होंने हमें हमारी तरक्की के नाम पे बेवकूफ़ बनाया था। अब जो है दिस इज़ द टाइम फॉर अ न्यू बिगिनिंग, देयरफॉर वी मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस। हमें इससे सबक सीखना चाहिए, अपने माजी से सबक सीखना चाहिए। हमने देख लिया कि माजी में क्या हुआ। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप आज़ाद हैं, आप अपने टेम्पल्स में जाएं। यू आर फ्री टू गो योर मॉस्क्स, आप मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं। और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, या फिर आपकी कोई और इबादत की जगह है, आप जिस भी मज़हब से बिलोंग करते हैं आप आज़ाद हैं अपने मज़हब को फॉलो करने के लिए। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, किसी भी मज़हब से, किसी भी ज़ात पात से आपका ताल्लुक़ हो, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। इसको स्टेट के रियासत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इट इज़ योर ओन इंटरेस्ट, आपका इंडिविजुअल मैटर है ये। वी आर स्टार्टिंग इन द डेज व्हेन देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। अब ये वो वक्त है जब डिस्क्रिमिनेशन हर तरह की, कि ये गोरा है, ये काला है, ये एशियन है, ये यूरोपियन है, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशंस ख़त्म हो चुकी हैं। अब सब बराबर हैं। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अनदर, किसी माशरे के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन कास्ट और क्रीड और एंड अनदर, किसी ज़ात पात का, मज़हब का, नस्ल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। We are starting with this functional principle that we are all citizens and equal citizens of one state. हम इस बात से शुरू कर रहे हैं अपनी नई ज़िंदगी एक आज़ाद पाकिस्तान के अंदर कि हम सब इस रियासत के आज़ाद शहरी हैं और सब बराबर हैं। Ladies and gentlemen, I do not wish to take up any more of your time. अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। And thank you again for the honor you have done to me, और उस एजाज़ के लिए, उस इज़्ज़त अफजाई के लिए आपका शुक्रिया जो आपने मुझे अता की है। I shall always be guided by the principle of justice and fair play. अब उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर फेयर प्ले और इंसाफ से काम लूँगा। फेयर प्ले एक टर्म थी बेटे जो शेक्सपियर ने अपने एक प्ले में इंट्रोड्यूस करवाई थी। उससे यहाँ यूज़ करने से मुराद आप ये लें कि जायज़ और बिल्कुल फेयर, बिल्कुल साफ़ और शफाफ होकर मैं सबके साथ चलूँगा, विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज। मैं किसी नस्ली तासुब और पॉलिटिकल तासुब के बगैर, प्रेजुडिस और इल विल, यानी मैं किसी बुराई और को अपने दिल में नहीं आने दूँगा किसी कौम के ख़िलाफ़ कि ये ईसाई है, ये हिंदू है। सब के साथ हम एक जैसा डील करेंगे। सब जो हमारे रियासत के शहरी हैं वो सब हमारे लिए बराबर हैं। माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कम्प्लीट इम्पार्शलिटी। मेरा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होगा? गैर जानिबदारी। एंड आई एम श्योर दैट विद योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, और मेरा मुकम्मल यकीन है इस बात पर कि आपके ताउन के साथ, आपकी मदद के साथ, आई कैन look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. हम दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एक अजीम कौम के तौर पर उभार सकते हैं आपके ताउन के साथ और आपकी मदद के साथ। ओके बेटे, ये वाला सेक्शन भी देख लें। डू यू नो का वर्ड पाकिस्तान वाज क्वाइंड बाय चौधरी रहमत अली। ठीक है, उन्होंने बनाया था पाकिस्तान का लफ्ज़। क्वाइंड मीन्स जोड़ना।
ठीक है, उन्होंने दिया था। वर्ड पाकिस्तान वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर्स ऑफ इंडियन एंड एशियन टेरिटरीज। पाकिस्तान के अंदर जो इलाकों की डिमांड की गई थी ना 1940 के रेजोल्यूशन के अंदर, 1940 में जो करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी, उसमें इन एरियाज़ की डिमांड की गई थी कि ये इलाके पाकिस्तान को दे दिए जाएँ। तो उन इलाकों के इनिशियल्स के साथ पाकिस्तान का लफ्ज़ बनाया चौधरी रहमत अली ने। वर्ड पाकिस्तान वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन द पम्फलेट नाउ और नेवर। चौधरी रहमत अली का ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था पम्फलेट, उसके अंदर पाकिस्तान का वर्ड पहली दफ़ा यूज़ किया गया। व्हेन पाकिस्तान गॉट फ्रीडम द लास्ट वॉइस रॉय ऑफ द लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली तो आखिरी वॉइस रॉय कौन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ भेजा था, वो था माउंटबेटन। द लास्ट पॉइंट इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान वॉज कायद आजम। और आपको पता है ना, गवर्नर जनरल का ओहदा अब भी चेंज होके क्या बन गया है, सदर, प्रेसिडेंट बन गया है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। अब आपने करना क्या है, इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह विल सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेज इस सेक्शन इस लेसन की, एंड नोट्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू लेटर।